you again to this Excel sheet. Okay, अगर आप इस Excel sheet में देखते हो, so आ क्यों नहीं रहा? आगे तो चला गया. आज सुबह से तो बड़ा अच्छा चल रहा. Okay. So now look at this, Excel sheet. So what we have done, we had looked at the high operating leverage. Now we look at the low operating leverage. जो high वाला में था, उसमें क्या था आपका जो fixed cost component था, that was what 59%. Fixed cost was 59% and variable cost was 41%. Okay. So we found that the 10% increase led to a 43% increase in profits, operating profits, and 53% in the net profit. Okay, fine. But if you make it low operating leverage company, where we have more of a variable cost and 64% are variable cost and 36% is fixed cost. अब उसमें देखो आप क्या हो रहा है, a 10% increase will lead to only 18% increase in the operating profit and 20.2% increase in the net profit, and the leverage goes down as low as 2. The operating leverage has fallen to 2. Okay, combined leverage. Operating leverage is 1.83 and financial leverage is 1.10. Okay, and this is your ऑपरेटिंग लेवरेज चेंज इन. ओके, ठीक है. तो कोई भी इसमें कुछ शायद कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो. तो 1.8 इंटू 1.83 इंटू 1.10 मल्टीप्लाई करो, कितना आता है? 2 पॉइंट, हाँ तो वही आ रहा है इसका. ठीक है, द फिगर इज ओके, फाइन. सो व्हाट इज द मैसेज हियर, रुचि? विच इज which is magnify the profits or losses of the company. High leverage. If it is a high operating leverage, absolutely. If it's a lower operating leverage, then the profits are not going to change. If the cost structure is more towards the variable cost, then the company becomes not vulnerable. अगर sales बढ़ा तो profit भी बढ़ जाएगा, sales कम हुआ तो profit भी fall कर जाएगा. अब जैसे for example I showed here that if I go to the high operating leverage and if the sale suppose comes to 90,000, okay, then what happens? A 10% decline can lead to a high erosion of profit to 53%, and then the share price will also go down dramatically to just 38 rupees. ये देखो, share price 30 कर हो गया, 85 से share price has tanked to 30, just 10% decrease. Okay, but in case of a low operating profit, low operating this thing, then even if the sales goes down to 90,000, okay, what will happen? The profit will decline by 20%. It will decline still, but not to that extent. And the share price will go down from say 190 to 151. So उसमें the share price is different. Okay, fine, because the profitability was different. So यहाँ पर 190 से क्या हो गया, कम fall करा. Is that okay? So coming back to our slides again. ऑपरेटिंग लेवरेज. सो दिस वी हैव रेड. ओके, फाइन. ये लास्ट हमने पढ़ा था. अब आगे चलते हैं. मुनीश का है, मुनीश इज मिसिंग एंड हु इज एल्स इज मिसिंग? यश. ओके, ये दोनों के दोनों ज़्यादा सीरियस नहीं है पढ़ने में, है ना? ओके, हमारा दीपक देखो कितना इंटरेस्टेड है पढ़ने में, है? दीपक इज़ फार बेटर. इसको कायम रखो भैया दीपक. वैभव तो है ही, इंटरेस्टिंग है ना टॉपिक, तो इसलिए तो मैं कह रहा हूँ. अच्छा, की एस्पेक्ट्स ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज. नाउ आफ्टर वी हैव स्टडीड ऑल दिस, देयर विल बी अ क्वेश्चन व्हिच आई विल बी डूइंग. ओके, सो फोकस ऑन दैट, विल गेट रिकॉर्डेड. सो वॉच द रिकॉर्डिंग बिफोर यू अपीयर फॉर एग्जाम. ओके, ये काम आएगा आपका जो क्वेश्चन आंसर है. ओके, हाई वर्सेज लो ऑपरेटिंग लेवरेज. तो जस्ट रीड दिस ऑफ योर ओन. इज द फर्स्ट बॉक्स क्लियर? दीपक पढ़ो, इसको समझ में आया? फर्स्ट बॉक्स जो है, व्हाट इट इज रिटन. ओके, Swarna, Vaibhav, have you followed? And what about Riya? Is it clear? Okay.
Now, how operating leverage affects a business? Impacts on profitability. Okay, just read this in your mind. कम तो टाइम से आएगा, शुरू हो गया लेक्चर। नो, आ जाओ, कोई बात नहीं। सो एनीवे यू कैन जस्ट वॉच द वीडियो जो तुमने मिस करा है ना, मैं अपलोड करूँ, उसको वॉच करना, अच्छी तरह वॉच करना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला। सो हाउ ऑपरेटिंग लेवरेज अफेक्ट्स अ बिजनेस, जस्ट रीड दिस फर्स्ट, एंड बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन इट, ओके, सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिटन एंड रिलेट टू व्हाट वी हैव लर्नड सो फार। ओके, मनीष पढ़ो उसको, इसको पोड़ा पढ़ने के लिए जिस जिसको समझ आया जस्ट रेज योर हैंड। आ गया, आपको आ गया, आपको आ गया, आपको आ गया, बस दोनों आप पढ़ो। वैभव आपको आ गया समझ में? पढ़ो पढ़ो। इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। जो चीज़ समझ नहीं आई वो बता, पूछ लो मुझसे। डोंट वरी कि बाकियों को समझ आ गया मुझे नहीं आया, सो डोंट फील दैट वे। ओके, या बताओ। आ गया, अच्छा ठीक, आपको भी आ गया, गुड फाइन। वैभव आपका हाथ खड़ा नहीं हुआ अभी। सेकेंड पॉइंट, इन कंट्रास्ट ड्यूरिंग डाउन टर्न्स, अगर नीचे आती है तो हाई ऑपरेटिंग लेवरेज कैन हर्ट प्रॉफिटेबिलिटी, क्योंकि अगर फिक्स कॉस्ट है, हाँ ठीक है बिल्कुल, वो जो बता रहे हैं फिक्स कॉस्ट को तो मीट आउट करना है। जैसे मैंने बताया कि हमारी करीब 10 लाख की फिक्स कॉस्ट है बिजनेस में, और मेरी सेल ही 9 लाख हो रही है, तो आई लूज 1 लाख रुपीज़। बट अगर ऐसे ही अगर मेरी सेल 11 लाख हो जाएगी तो आई मेक 1 लाख प्रॉफिट। तो कितना ह्यूज डिफरेंस होता है बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाय जस्ट अ कपल ऑफ लाख सेल्स। ओके, बिकॉज ऑफ द डाउन टर्न यू आर गोइंग टू लूज हैवीली। ओके, बिकॉज फिक्स कॉस्ट तो आपको मीट आउट करनी है, वो तो बदलेगी नहीं। अगर आपकी 100% वेरिएबल कॉस्ट होती तो फिर आपको नुकसान ना होता ड्यूरिंग द टर्म, फिर आप करोगे नहीं खर्चा वो वाला। हाँ, ओके, रिस्क एंड वोलेटिलिटी। ये ऐसा क्यों हिल रहा है? हाँ, ऊपर रख दो। हाँ, आ जाएगा, आ जाएगा, आगे आगे छोड़ दो। सो बिजनेस विद हाई ऑपरेटिंग लेवरेज फेस, मुनीश प्लीज कीप योर मोबाइल्स, मोबाइल को यहाँ रख दीजिए आप, इधर रख, दोनों के दोनों मोबाइल हैं। अच्छा, तो करना है कुछ? ओके, सो बिजनेस विद हाई ऑपरेटिंग लेवरेज फेस अ रिस्क एंड प्रॉफिटेबिलिटी एज दे एक्सपीरियंस स्विंग्स इन प्रॉफिट्स। तो रिस्क ज़्यादा है अगर बिजनेस हाई ऑपरेटिंग लेवरेज है, रिस्क इंक्रीजेज। ओके, प्रॉफिट में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा आती है, तो रिस्क एंड वोलेटिलिटी गोज अप। ओके फाइन, तो ये अब इसको जस्ट रीड इट एंड यू विल अंडरस्टैंड। सो आई एम जस्ट मूविंग ऑन टू द, जस्ट पढ़ लो। So, businesses which are with high fixed costs like manufacturing, airlines, telecommunication often have high operating leverage. I was working in a telecom company like Idea Cellular, Vodafone, Reliance, Airtel. I worked in almost all the companies, okay. So, we used to, our major cost was fixed in nature because we used to buy, telecom equipment, switches, rooftop towers, everything. वो लगा दिए, we will buy the equipment and towers. That was all fixed cost in nature, okay, and then we don't have to spend any money. Suppose we have built up towers to cater to say 50 lakhs of subscribers, 50 लाख सब्सक्राइबर उससे हमारे चल जाएंगे। तो अगर हमारे बढ़ते गए 1 लाख सब्सक्राइबर, कॉस्ट तो वही रहेगी, 2 लाख आएगा, कॉस्ट तो वही रहेगी, है ना। तो जैसे सब्सक्राइबर बढ़ते जाएंगे तो हमारी कॉस्ट इंक्रीज नहीं होगी, सिर्फ सिम की कॉस्ट बढ़ती थी। हमें सिम देना पड़ता है अपने यूज़र को, व्हेन यू आर यूजिंग अ मोबाइल यू हैव टू हैव अ सिम। सिम इज कॉस्टिंग टुडे 5 रुपीज़, ओके। उस टाइम 200 रुपये का सिम होता था, व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग, एंड वन टावर यूज्ड टू कॉस्ट 1 करोड़। नाउ इट्स कॉस्टिंग जस्ट 5 लाख रुपीज़, बट स्टिल द कॉस्ट रिमेन्स फिक्स्ड, ओके।
So companies have to upfront spend money in towers, in हाँ टावर में कैसे कम हो गया? देखो ऐसा जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है, लैंड का तो फिक्स कॉस्ट ही रहेगा। नो आई एम नॉट सेइंग द टावर कॉस्ट इज बेसिकली द इक्विपमेंट कॉस्ट। अब लैंड के ऊपर लगा हुआ है वो तो रेंटल है, आइदर यू आर टेकन ऑन रेंट और यू हैव बॉट द लैंड, ओके, वो भी फिक्स्ड है। लैंड प्राइस बढ़ जाएगा बट लैंड में लगा होता है रूफ टॉप पे ज़्यादा लगते हैं। 90% टावर्स ऑन द रूफ टॉप, 10% और ग्राउंड बेस, ओके, विच आर ऑन द हाईवेज और समथिंग, ओके। सो जो रेंट पार्ट है दैट इज वेरिएबल, ओके फाइन, एंड दैट इज ऑल्सो फिक्स्ड बेसिकली एंड दे कैन इंक्रीज, बट द टावर इक्विपमेंट कॉस्ट हैज कम डाउन ड्रास्टिकली। वन टावर इक्विपमेंट कॉस्ट वॉज 1 करोड़ व्हेन यू यूज्ड टू बाई फ्रॉम नोकियाज, ओके। उसका एरिक्सन आया, उसका अब तो चाइनीज़ के बड़े सस्ते सस्ते आगे 5-5 लाख रुपए के टावर मिलते हैं, वो लगा दो ऊपर छत पे, फाइन। अब जैसे ये आपको ये देख लो माइक है, छोटा सा माइक है, ट्रांसमीटर है ये, तो तब तो इतना बड़ा ट्रांसमीटर, जो मोबाइल था दैट वाज सच अ बिग मोबाइल इनिशियली, देन मोबाइल इज बिकम वेरी नाउ स्मॉल, ओके फाइन, विच कैन ईजिली टू हैंडल। एप्पल वाला फिर भी थोड़ा सा हैवी है, बट कई मोबाइल से बहुत हल्के फुल्के हो गए हैं फिर। और जब मैंने पहला मोबाइल लिया था इट वॉज लाइक बिग, पूरा हाथ हाथ दोनों जगह से निकलता था मोबाइल, ओके। तो ये हो गया। नाउ स्ट्रेटेजिक डिसीजन, इसको पढ़ लीजिए। कंपनीज में एक्टिवली मैनेज देयर ऑपरेटिंग लेवरेज बेस्ड ऑन हायर ग्रोथ एक्सपेक्टेशन and risk tolerance. For example, a company expecting rapid growth may be more willing to incur fixed cost, such as investing in automated production lines to increase the margins as sales rise. You know, so if the business is expanding, business बढ़ रहा है, तो आपने fixed cost भी खर्च ली, तो because rise in income, you will generate more income. ये तो है नहीं कि नीचे आएगा, आपका business expand कर रहा है, तो क्या होगा? Like in telecom, you know, telecom was all fixed cost. So as number of people increased, okay, in India who were owning mobile, the company started becoming more profitable. You know, when I joined the company way back, you know, mobile was started in India in 1995. Okay, that time the outgoing call was 16 rupees per minute and incoming call was 8 rupees per minute. So we had to pay both for incoming and outgoing. Now you don't pay any money; it's a fixed cost. 500 रुपये दिया, incoming, outgoing, all everything included in that. Okay, so telecom में जो था, हाँ, for example, now the companies which are growing, so they can, you know, they can have more fixed cost, maybe less variable cost. Like, you know, they can increase that. Now, during uncertain times, companies may shift to a more variable cost structure by outsourcing operations or using short-term leases instead of buying assets. Now, for example, you know, like let's take an example of a call center in a telecom or any company. Now, call center can be in-house by the company or they can outsource the call center. Like when I was working in Reliance, so we had, you know, about 10,000 people sitting in the call center owned by Reliance in Mumbai, where the space has become very costly. Okay, space भी costly है, फिर करीब 10,000 लोग बैठे हैं, उनकी salaries हैं, उनके आगे systems हैं. So they were, you know, having their own call center, and they were training their call center people, because they found that, you know, it is always better to have your own call center agents, because they will be, you know, more loyal to the company and they will, you know, address the customer needs very well. Unki philosophy. Now, since, you know, it is very expensive, so people either can outsource the call center, you know, फिर आप क्या करो, किसी को बोलो कि हमारा call center बन जाओ, हम आपको इतने पैसे per seat दे देंगे. That is much cheaper. Okay, but somebody else is doing your job. अब वहाँ पर करीब 10,000 लोग बैठे हुए हैं, कोई रिलायंस की कॉल ले रहा है, कोई किसी बेबी फूड्स प्रोडक्ट की कॉल ले रहा है, कोई करीब 20 तरह के बिजनेस है, सबकी कॉल आ रही है, बट सेम वन कॉल सेंटर एजेंट गाई इज हैंडलिंग ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ ऑल द इंडस्ट्रीज. ओके, बट इट्स अ चीपर वे ऑफ हैंडलिंग द कस्टमर कॉल्स, राइट. तो वो कहता है कि अगर आपको ड्यूरिंग अनसर्टेन टाइम कंपनीज में शिफ्ट टू मोर वेरिएबल कॉस्ट स्ट्रक्चर बाय आउटसोर्सिंग ऑपरेशंस. यू कैन आउटसोर्स ऑपरेशन इफ यू थिंक द, अब जैसे अभी क्या हो गया, नाउ यू नो, for example, telecom, you know, when I joined telecom, there was, you know, 1%, even less than 1% tele-density. That means only 1%, I'm saying 1, it was actually 0.3. So this was, you know, 1% out of every 100 person was having a mobile or a fixed line telephone. उस टाइम तो मोबाइल होता ही नहीं था, घर में लोगों के टेलीफोन होता था, एक आदमी से कम per 100 के was having a mobile or a fixed line. Okay. And there was a great waiting list. You know, when I
in way back in 1995 or somewhere there, I went to book a telephone, a fixed line, not a mobile was not there that time, before 95. So when I applied for the telephone connection, तो मैंने उनको बोला कि पैसे जमा कराओ, तो मैंने 1000 रुपया या 2000 रुपया डिपॉजिट दिया, एंड आई गॉट अ रिसीट फ्रॉम द क्लार्क. उसने मुझे टेलीफोन की रिसीट दे दी कि आपके घर में टेलीफोन लगेगा. मैंने कहा भाई साहब टेलीफोन कब लगेगा? कहता है सर देखिए इसमें लिखा हुआ है. टेलीफोन जो था वो 20 साल के बाद लगना था मेरे घर में, 20 years आफ्टर. ही सेड देयर इज अ वेटिंग लिस्ट ऑफ 20 years इन राजौरी गार्डन एरिया. पूरी दिल्ली में 15 से 20 साल की वेटिंग लिस्ट हुआ करती थी. तो उस हिसाब से मैंने 1986 में टेलीफोन लगाया, 85 में टेलीफोन दिया था, एप्लीकेशन दी थी. तो 20 साल कब होते थे? 2005 में. 2005 में लिखी हुई थी डेट. एक्सपेक्टेड टू गेट अ टेलीफोन इन योर हाउस विल बी 2005. ओके, सो दिस वाज अ काइंड ऑफ अ सिनेरियो इन इंडिया वेयर मोबाइल तो था ही नहीं एंड लैंडलाइन वाज टेकिंग 20 years. तो लोगों के घर में एक नंबर होता था, बोलता ये नंबर आपका है या पीपीए है, क्या है पता है आपका? आप अपने पेरेंट्स से पूछना. वो बोलते थे ये नंबर है लेकिन पीपी है. पीपी मीन्स मेरा नहीं है, मेरे पड़ोसी का है. सो यू मेक अ कॉल एंड यू से सर आई वांट टू टॉक टू रुचिका. सो वो कहता है रोल्ड ऑन, वो नेक्स्ट वाले घर में है, मैं उनको बुलाते हैं. सो बिकॉज रुचिका वाज नॉट हैविंग अ फोन. ओके फाइन. सो दैट वाज कॉल्ड द पीपी नंबर. विल से दिस इज द नंबर पीपी. पीपी मीन्स इट इज नॉट माई नंबर, आई हैव गिवन माई नेबर्स नंबर. सो देयर वाज नो दिस थिंग. फाइन, दिस वाज अ काइंड ऑफ अ सिचुएशन. देन यू नो दैट टाइम आई वॉज वर्किंग इन बत्रा हॉस्पिटल. तो क्योंकि जब हॉस्पिटल में डॉक्टर्स एंड द स्टाफ दे गेट अ प्रायोरिटी इन गेटिंग अ न्यू कनेक्शन, सो वो फ़ोन इमीडिएट लग जाता है. सो आई गॉट अ लेटर फ्रॉम माई हॉस्पिटल. जब मेरे को 20 साल का वो मिला एप्लीकेशन, सो आई वाज शॉक्ड. सो आई वेंट टू माई डायरेक्टर एंड सेड आई नीड ए टेलीफोन. ही सेज कोई बात नहीं बेटा, एक हम आपको लेटर हेड पे वो दे देते हैं लिख के दैट यू आर वर्किंग विद अस एंड यू नीड अ टेलीफोन इमीडिएटली. सो आई वेंट विद दैट लेटर and I got a telephone connection on priority basis, immediate basis. But उसमें क्या होता था? I had to pay double the price, okay? And the telephone connection was only for 6 months. But you can keep, I mean, extending it for next 4 years. तो मैंने कहा चलो ठीक है, 4 साल तो फ़ोन लग गया. So this was a kind of situation. Now tell me, अभी आपको टेलीफोन चाहिए, अभी मोबाइल, उस टाइम तो मोबाइल नहीं होता था, आप तो मोबाइल भी ले सकते हो, लैंडलाइन तो कोई लेता ही नहीं है. So how much time it takes to get a mobile? 10 minutes. 10 minutes, ओके. और एक टाइम तो ऐसा आया था जब देयर वाज इंटेंस कंपटीशन विद द टेलीकॉम प्लेयर्स. सो यू नो यू जस्ट गो टू ऐसे ही मुझे कोक चाहिए, तो आपने कोक उसको ऑर्डर करी, उस बंदे ने कोक निकाली और बोला इसके साथ एक सिम फ्री है, इसमें 500 रुपये का फ्री टॉक टाइम भी है. सो नो पीपल स्टार्टेड सेलिंग सिम्स अलॉन्ग विद अ फ्री टॉक टाइम विद अ बॉटल ऑफ कोक. बॉटल ऑफ कोक के साथ बंडल कर दिया, कोक के साथ मिलेगा, थम्स अप के साथ नहीं मिलेगा, ऐसा कर दिया, लिम्का के साथ मिलेगा, फंटा के साथ नहीं मिलेगा, ऐसे कि लोग उसकी सेल भी बढ़ जाए और टेलीकॉम के कस्टमर भी बढ़ जाए. तो कोई लोग क्या करते थे, लोग वो सिम लेते थे और उनके पास ऑलरेडी सिम होता था, तो 500 रुपये का टॉक टाइम फ्री मिल गया, तो 500 रुपये का टॉक टाइम लिया और फेंक दिया सिम. बट इस प्रोसेस में अगर 10 कनेक्शन बिकते थे तो 1 कनेक्शन या 2 कनेक्शन तो परमानेंट बन जाते थे. So this is the way the telecom companies were, you know, increasing their. Just listen to me very carefully. उसका क्वेश्चन. तो क्या होता था? इतना intense competition था. People were throwing money at the people, and we had only, you know, one person was the tele density. एक आदमी के पास सिर्फ टेलीफोन था उस जमाने में. वो बढ़ता 5 हो गया जब मैंने ज्वाइन करा. और आज कितना है? 90 people out of every 100 has a telephone connection. Okay? और कई लोगों के तो multiple connection भी हैं. Okay? सो इतना इंटेंस कंपटीशन हो गया कि पीपल वर यू नो थ्रोइंग सिम्स एट द पब्लिक कि हमारा सिम ले लो, एयरटेल बोलते हमारा ले लो, आइडिया वाज सेइंग कि हमारा ले लो. सो एवरीबॉडी इज ट्राइंग टू यू नो थ्रो दैट सिम्स इन द मार्केट along with other products so that people buy it, and almost like 90% sims will go waste because people are not going to use after their free calls are over. So this was the way on which you know the progress of telecom happened in certain period of time. तो एक बार मुझे याद है, you know, my managing director of the company, CEO of the company, he was, you know, hospitalized and had a heart surgery. And he was known to be very well. And he used to talk to me because he was the CFO that time and I was in the finance department. So we used to work very closely with him. Then he became the CEO of the company and managing director of the company. So he was hospitalized and he was under a heart surgery. तो वो जैसे रिकवर हुआ और वो रिपोर्ट देख रहा था, उसने पूछा प्रवेश ये क्या है?
But what is happening? Then I told him the whole story. Sir, I have to CEO of the company, you should be knowing it. This is the sales strategy now that we are throwing the SIMs in the market. You know, the sales is going up by 1 lakh per day, but actually we are getting only 5,000 customers. 5,000 ही real customer है, बाकी 95,000 is a कूड़ा, because they are going to throw this thing. So you'll say इतने कनेक्शन डिस्कनेक्ट हुआ क्या? एक दिन 5 लाख कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर दिए. क्यों? जब साफ कर रहे थे देखा तो ये 5 लाख कनेक्शन तो कोई यूज ही नहीं कर रहा. देते रहे लोगों ने फेंकते गए. बट क्लीनिंग प्रोसेस जो होता है टेलीकॉम में अपने सिस्टम में वो थोड़ा लेट होता है. तो एक दिन 5 लाख कस्टमर नेगेटिव आ गए कि हमने 5 लाख नए कस्टमर नहीं लिए, नेगेटिव कस्टमर आ गए. तो CEO वाज रीडिंग द रिपोर्ट ऑन द हॉस्पिटल बेड. सो ही कॉल्ड मी अप. ही सेज, प्रवेश, ये तुम्हारे दिल्ली में क्या हो रहा है? एंड यू नो, आई वाज जस्ट, यू नो, आई केम आउट ऑफ माई, यू नो, फ्रेंड्स ऑफिस एंड यू नो आई सेट इन माई कार. और गर्मी का दिन था, अराउंड 45 डिग्रीज टेम्परेचर, और आई हैड नॉट टर्न ऑफ द AC, और मैंने शीशे बंद कर लिए थे और उसका कॉल आ गया. तो मैंने सब छोड़ करके फ़ोन अटेंड. मेरे पसीने, आधा घंटा बात करता रहा, एंड आई वॉज प्रेस्पायरिंग एंड माई, यू नो, पसीना हो रहा था. मैं उसको समझाता रहा. मुझे दुख तो हो रहा था क्योंकि मेरे को, मैंने AC ऑन करता, मैं उस टाइम सुन हो गया. फिर वो कहता, अच्छा ये बात है. फिर उसको जब समझ आ गई तो उसने कहा, बट दिस इज़ नॉट गुड. मैंने कहा, सर, दिस इज नॉट ओनली वी आर डूइंग, दिस इज एयरटेल इज डूइंग, दिस इज व्हाट रिलायंस इज डूइंग, दिस इज व्हाट, you know, other companies are doing. So we are not just the lone baby. But I think this should have been apprised by you from the marketing department or sales department. I am a finance guy, I am telling you. Okay? But आपको sales and marketing people, you should have taken your consent before, you know, offering such kind of a promos to the people. उसको पता होना चाहिए ना. He is the chief of the company. अगर चीफ ऑफ कंपनी को ही नहीं पता कि ये चल रहा नीचे उसके नाक के नीचे, तो मैंने कहा, सर, मैं तो सिर्फ आपको बता रहा हूँ, एंड आई थॉट दैट यू विल बी नोइंग इट. The marketing and sales guys should have informed you before doing that. Okay, so this was the thing. Companies may shift to by outsourcing the operation. तब अब क्या हो गया कि अब 90% लोगों के पास टेलीफोन हो गया. Okay, now you know you can't afford to bear high cost, so outsourced everything. Like call center was outsourced. Fine, तो कॉल सेंटर आउटसोर्स हुआ तो कॉस्ट कम होगी. तो आज क्या है, आपको छोटे से पैसे में ही आप टेलीफोन कर लेते हो. तब बड़ा एक्सपेंसिव. ऑल द कंपनीज वर बर्निंग कैश एंड दे वर मेकिंग ह्यूज लॉसेस इन इंडिया. ऑल टेलीकॉम कंपनीज वर मेकिंग लॉसेस इन इंडिया टिल अ लॉट ऑफ टाइम. इवन द सेल्स वर ग्रोइंग, पीपल वर कमिंग, कस्टमर्स वर कमिंग, बट द कंपनीज वर नॉट मेकिंग प्रॉफिट बिकॉज द कॉस्ट वॉज वेरी हाई. Because the companies wanted to provide the best of the quality service, but the costs were going up and companies were not profitable. Okay, till now, till today, you know, all the companies are in losses. All the telecom companies are in losses after Reliance, you know, came into the market. Fine. So Reliance was not given any license. जब शुरू में, जब 1995 में और 2000 के बीच में, Reliance, Mukesh Ambani Group, only Anil Ambani Group was running a Reliance Communication. So Mukesh Ambani Group और धीरूभाई अंबानी ग्रुप जो था, उनको टेलीफोन का लाइसेंस नहीं मिला. तो हमें मिला भी तो कोई ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो रहा था. कुछ लोग जगह में मिला क्योंकि देयर आर सो मेनी सर्कल्स. इट्स नॉट लाइक पैन इंडिया टेलीफोन कनेक्शन मिलता है. एक स्टेट का अलग अलग मिलता है. एक स्टेट में भी सर्कल होते हैं, जैसे यूपी में 2 सर्कल हैं, ईस्ट सर्कल, वेस्ट सर्कल. तो हमारे CEO ने बोला कि रिलायंस हैज़ मिस्ड द बस, दे हैव मिस्ड द बस. अब वो आ नहीं सकते, इस हमारे टेलीकॉम में आ ही नहीं सकते. दे हैव मिस्ड द बस. अभी क्या हुआ, एवरीबडी हैज मिस्ड द बस, दे आर इन द फोरफ्रंट. रिलायंस ने सबको पीछे छोड़ दिया, वो घुस गए अंदर. अच्छा, एक बात और हुई थी, एक कई साल पहले की बात है कि आई वाज सिटिंग इन, देयर वाज अ मीटिंग गोइंग ऑन. इट वाज अराउंड आई थिंक 2001. सो वन ऑफ माय फ्रेंड, आवर यू नो CEO सेड वी आर गोइंग टू हैव कन्वर्जेंस. कन्वर्जेंस क्या होता है यार, ये मैं तो पहली बार वर्ड सुना. पता तो है कन्वर्जेंस इंग्लिश वर्ड, बट व्हाट डज इट मीन फॉर अ टेलीकॉम गाय? Then my friend told me convergence means that the telephone will become everything for you. It will become a mobile, it will become a camera, it will become, you know, you can watch movies, you can watch TV, you can, you know, do anything. There's so many things, applications will be it become your mirror also, face mirror भी देख सकते. There are so many applications now, the mobile has replaced everything in your life and become one instrument which will do everything for you. Okay. So that is called convergence, that we are going to be in a state where everything will converge into mobile. At that time, nobody thought that mobile is going to take that kind of a route. Okay. Sir, internet was there or not? Huh? At that time, internet was there or not?
इंटरनेट, हाँ इंटरनेट था, मैं बताता हूँ क्या था। हाँ सिम में, हाँ सिम में जो इंटरनेट था उसकी स्पीड बहुत स्लो थी, द स्पीड वॉज वेरी स्लो, सो इट वॉज ओनली अ वॉइस टेलीफोनिंग. Data was not that rapid and fast moving. Over the years, the data has become now because the government has given new frequency. You know, government allots the frequency. Government frequency देती है, उसके ऊपर ही टेलीकॉम चलता है. Now, government was not using frequency. That frequency which they gave to the telecom industry was used by defense forces. Army, Navy, Air Force के लोग use कर रहे थे. You know, they're running their wireless equipments. So the government said we can't give because you know it is used for armed purposes. But then they found that actually because you know we were not progressing. Only you know I was taking, you know, it was taking 20 years to get a telephone in your house. So then you know government thought enough is enough. Let us take all the wireless you know bandwidth from the army people or air force people and give it to the telecom players so that they can start run a telephone connection in India. And they offered them एडिशनल यू नो स्पेक्ट्रम, उनको अलग से बैंडविड्थ दी थोड़ी, जैसे बैंडविड्थ है 800, 900, 1000, 1200, 2100, 2000, 3000 जो बैंडविड्थ होती है वो मेगाहर्ट्ज बैंडविड्थ होती है, वो टेलीकॉम के लिए लगती है. उसके ऊपर की जो होती है वो थोड़ी उसके सिग्नल स्ट्रेंथ पूर होते हैं, तो वो तो उन्होंने डिफेंस वाले को दे दी. और डिफेंस वालों से अब क्योंकि ये हो गया कि डिफेंस वालों को कहा, उन्होंने कहा हमारे सारे इक्विपमेंट चेंज हो जाएंगे, वी हैव टू स्पेंड ह्यूज कॉस्ट. जैसे रुक जाओ, वी विल डू ऑक्शन ऑफ दिस स्पेक्ट्रम and recover this money from the telecom players and give it to you. तो देखो आप हर एक कंपनी ने कितने करोड़ों रुपया दिया, जो स्पेक्ट्रम का घोटाला भी हुआ था, 2G घोटाला, 3G घोटाला. So this all happened because huge money was sucked up from telecom players, and out of that a lot of money was given to the defense forces so that they can you know change their equipment and stabilize their operation on the new frequency. And the old frequency which was 800 megahertz, 900 megahertz, 2100 megahertz, जो 2100 megahertz थी ना, that was being used for internet, broadband. Okay, so that broadband became applicable to mobile telephoning, and now we find the speeds have become much better in the mobile. Earlier the speeds were only very less. So अगर किसी ने बैंड यूज करना है ना इंटरनेट, तो वॉइस खत्म हो जाती थी बिल्कुल, आप टेलीफोन नहीं कर सकते थे. Okay, so you are not able to use the voice channel. All the channel will be used by the data. So voice channels will get blocked. Everything will go to the. If suppose a lot of people are using internet, so you will find there will be a lot of disturbance at your home. You can't use the telephone. So that's why the introduction of new megahertz kind of channels which came, which you know. तो ये है, इसकी तो पूरी स्टोरी है. You know, actually I tell this story, a 3-hour story to all the people you know who do the MBA on the telecom. So I'm just told you just in tidbits. Okay, very interesting story. Some time में वो तो बताऊंगा आपको. Okay, is it okay? Just read this. Is that clear? अगर जिस चीज़ को समझ आता जाए हाथ खड़ा करता जाए. रिया को समझ आता है, वेरी गुड. रिया तो इंटेलिजेंट है. रुचि भी आ गई, रुचि को भी आ गया समझ में. दीपक पढ़ लीजिए, मुनीश आप भी पढ़ लीजिए. आपको आगे यश. अब मैं सोच रहा आपका नाम क्या है, याद आया यश. आपको आगे देखो, आपका जो योर नेम इज़ एक्चुअली माई नेफ्यूज़ नेम. सपोज आई फॉरगेट यू सेड आपका नेफ्यू का नाम क्या था, मुझे याद आ जाएगा आपका नाम क्या है. और आपका नाम जो है माई वन ऑफ माई ब्रदर्स बेस्ट फ्रेंड इज़ यश. आप पता नहीं कहाँ हैं दोनों, मतलब दोनों मीन्स ब्रदर तो है मेरा, यश का पता नहीं कहाँ है, कई सालों से मिला नहीं हो. ओके, इज दैट ओके? फाइन. ओके, सो ये हो गया. अब हम चलते हैं सीधा क्वेश्चन के ऊपर, एग्जामिनेशन क्वेश्चन के ऊपर. ओके, सो यू नो आई हैव गिवन सम यू नो एग्जाम्पल. लो ऑपरेटिंग इंडस्ट्रीज. ओके, लो ऑपरेटिंग कौन सी हैं? रिटेलर्स, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज सच एज रेस्टोरेंट्स, अकाउंटिंग कंपनीज हैव लो ऑपरेटिंग लेवरेज. हाई ऑपरेटिंग लेवरेज एयरलाइंस, यू नो होटल्स, टेलीकॉम, ओके, एनर्जी. सो ये सब वो हैं हाई फाइनेंशियल लेवरेज. ये सब आगे चलते हैं. हाँ, अब
Please pay attention. This is the most important questions. Okay, fine. So on a similar line, there will be a question in your exam. A company has, just read, Ruchi. A company has the following financial information: sales revenue 8 lakh rupees, variable. Just hold on. Just read it again. Yeah. A company has the following financial information: sales revenue rupees 8 lakh, variable cost rupees 3 lakh, fixed operating cost rupees 1 lakh 50,000, interest expense rupees 40,000. Calculate the degree of operating leverage at the current sales level. Calculate the degree of financial leverage at the current sales level. Okay, so this will be the question which will be there in your paper. Okay, so there is a sales is given, variable cost is given, fixed cost is given, interest cost is given. So you have to find the degree of ऑपरेटिंग लेवरेज एंड डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज. सो यू विल, आप बड़ा सिंपल आप भी करोगे तो कर लोगे. तो जैसे मैंने आपको समझाया, तो पहले क्या करोगे, यू विल मेक दिस टेबल. सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट इज योर ऑपरेटिंग इनकम, माइनस इंटरेस्ट इज कॉल्ड द अर्निंग बिफोर टैक्स. आपका ये बन गया, अब सारा डेटा बन जाएगा. तो आपने क्या करना है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज. इसमें आपको क्या लेना है, कंट्रीब्यूशन लेना है और ऑपरेटिंग इनकम लेना है और डिवाइड करना है. ऑपरेटिंग लेवरेज 1.43 आ गया. इज दैट ओके? सो ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ऑपरेटिंग इनकम, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ऑपरेटिंग इनकम. सो दिस इज कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ऑपरेटिंग 1.43. इज दैट ओके? हैं? जो 1.43 आया है ना ऑपरेटिंग लेवरेज, हाँ, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इसका जो है ये लेवरेज कंपनी है. दैट मीन्स इफ सपोज द सेल्स गोज अप, द प्रॉफिट विल 1% सेल्स विल इंक्रीज 1.43% ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट. ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो एक बढ़ेगी सेल्स और 1.43 बढ़ेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट. इसका मतलब ये है. इज दैट ओके? सो इट्स ऑपरेटिंग बिकॉज द फिक्स कॉस्ट इज हाउ मच, द फिक्स कॉस्ट इज 1,50,000. ओके, एंड वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा है, सो दैट्स वाई इट इज लीडिंग टू अ लेस. अगर जितनी ज़्यादा फिक्स कॉस्ट होती जाएगी उतना ज़्यादा लेवरेज बढ़ता जाएगा. ओके, फाइन. So you can even try, just think, just reverse it, just reverse is in your mind. Suppose it is 3 lakh की जगह ये 1.5 लाख है और ये 3 लाख है. Just recalculate the numbers, okay, and calculate the operating leverage. Okay, Ruchi is going to do that. Just come on this thing. और वैभव मिटाओ इसके लिए, आप भी आ जाओ साथ में, दोनों मिलकर इसको सॉल्व करेंगे. और आप भी कर लो और इनको बताओगे जहां ये गलती करेगी. अगर नाउ सेल्स रेवेन्यू रिमेन्स द सेम. ओके, इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं. सबसे ऊपर लिखो सेल्स रेवेन्यू विच इज 8 lakhs. सो सेल्स रिमेन्स द सेम. सेल्स इज हाउ मच, 8 lakhs. And variable cost is now 1,50,000. So what is the contribution? 6.5 lakhs. Fixed cost is now how much? 3 lakhs. तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा साढ़े, बस यहीं तक करो कैलकुलेट. अभी तो ऑपरेटिंग लेवरेज के लिए सिर्फ यही चाहिए हमें. ओके, नाउ कैलकुलेट, बाकी छोड़ दो आप. ओके, अब वहाँ पर करो, निकालो ऑपरेटिंग लेवरेज निकालो. बस इसके लिए इतनी इंटरेस्ट वाली तो हमें फाइनेंशियल लेवरेज चाहिए होगी ना. कंट्रीब्यूशन मार्जिन हाउ मच, 6.5 lakhs डिवाइडेड बाई एबिट 3,50,000. तो व्हाट शुड बी द नंबर, कितना आएगा नंबर बताओ कितना है? 650 डिवाइड बाय 350. नहीं, दो तो नहीं, 1.8 समथिंग होगा ना कुछ. 1.85. So now tell me, the operating leverage has gone up. See, the operating leverage, where is more operating leverage, this or this? So there, because the fixed cost is more. So as the fixed cost goes, the company becomes more riskier. During good times, company will outperform. During bad times, company will underperform. Okay, bad G. Is that okay? Is it clear? Simple हो गया? हाँ
हाँ Suppose there are two companies. हाँ One, हाई ऑपरेटिंग लेवरेज, दूसरी लो ऑपरेटिंग लेवरेज. yes. हाँ. So in which company you will invest? आई विल इन्वेस्ट. You'll take the risk or not? देखो क्या होता है, ऑफ कोर्स आई विल बी पुटिंग माई मनी विदाउट, अगर थॉट प्रोसेस हो तो आई विल से लो ऑपरेटिंग लेवरेज बिकॉज दैट इज लेस रिस्की. दिस इज विदाउट अप्लाइंग योर माइंड. बट देन if you think the next 10 years are going to be so good for India that you know all the company or that particular company is going to do very well, its sales are going to go up, in that case I'll prefer a high operating leverage. Fine. अगर मुझे लगता है अगले 10 साल तक बड़ा क्लियर इंडिकेशन है, अगले 5 साल तक, अगर 5 साल का भी है तो भी, या 3 साल का भी है कि आगे 3 साल जो है these companies will do huge amount of there will be a rapid increase in the profitability of the company, then I may bet on a high operating leverage. Though I am taking more risk, but I am getting more return. In the second case of your case where there is a low operating leverage, I don't want to take risk. I want to be in a safe haven. Okay? But then my returns will also not multiply. Okay? But if I think that the economy is not going to do so well, then I should be actually hiding myself in a low operating leverage company. Okay? जब मुझे लगा इकोनॉमी बहुत अच्छा चलेगी तो आई शुड बी पार्क्ड इन अ हाई ऑपरेटिंग लेवरेज. फाइन. ऐसा होता है, एक कंसेप्ट होता है बीटा, है ना. बीटा इज व्हाट, बीटा जो है वो लेवरेज के ऊपर भी डिपेंडेंट है. ओके. सो बीटा जो है, देखो क्या होता है, जो बीटा है, बीटा इज अ फंक्शन ऑफ टाइप ऑफ बिजनेस प्लस द लेवरेज. इस पे डिपेंडेंट है बीटा. ओके. हम कहते हैं अगर बीटा 1 से ऊपर है तो हाई बीटा है और 1 से कम है तो लो बीटा है. इज इट ओके? फाइन. अच्छा, अब अगर वो बिजनेस है जो कि ऐसा बिजनेस है विच इज डिस्क्रिशनरी इन नेचर, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, जिसमें कंज्यूमर जो है वो अपना डिस्क्रिशन यूज करता है कि मैं ये सामान खरीदूं या ना खरीदूं. जैसे गाड़ी, ऑटोमोबाइल कंपनी, अब मेरे पास पैसा है तभी तो खरीदूंगा. अगर इकॉनमी नीचे चल रही है, मेरे को मेरा बिजनेस भी नहीं चल रहा है, तो मैं गाड़ी खरीदूंगा? नहीं खरीदूंगा. मैं पोस्टपोन कर दूंगा, अगले साल खरीदूंगा. घर भी नहीं खरीदूंगा. जब मुझे लगेगा कि इकॉनमी जो है बड़ी अच्छी चलेगी, मेरी इनकम बढ़ रही है, तो आई विल बाय अ कार, आई विल बाय अ हाउस. सो देयर आई एम गोइंग टू यूज माई डिस्क्रिशन. सो दोज बिजनेसेस आर रिस्कियर इन नेचर, विल हैव हाई बीटा, will have a higher beta, because those businesses will actually earn great profits in a good times of the economic times, but in bad times those businesses will fall down. People are going to buy less cars. अब मारुति तो अपनी प्रोडक्शन करेगी, अगर नहीं भी करेगी उसकी कॉस्ट फिक्स्ड है, तो अगर लोग खरीदेंगे नहीं तो लॉस हो जाएगी कंपनी को. अगर लोग खरीदना शुरू करेंगे और कंपनी अच्छा कर रही है, इकॉनमी अच्छी चल रही है, सो दे विल प्रॉफिट्स विल शूट अप. सो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. सपोज आपको पता है कि निफ्टी और सेंसेक्स दो इंडेक्स है ना. इफ आई से दैट अ कंपनी, इफ द सेंसेक्स फॉल्स डाउन बाय 10%, or sorry, Sensex goes up by 10% and the company's share goes up by 20%. अगर सेंसेक्स 10% बढ़ता है और कंपनी जो है 20% बढ़ती है, या ऑपोजिट वे, अगर सेंसेक्स 10% गिरता है और कंपनी 20% नीचे गिर जाती है, तो बीटा कितना आया? 2. बीटा कितना होगा? 2. दैट मीन्स इट विल बी 2. व्हाट द रिटर्न ऑफ कंपनी, रिटर्न ऑफ एक्स वर्सेस रिटर्न ऑफ मार्केट. रिटर्न इसमें कितनी थी? 20. इसमें कितनी थी? 10. तो 2 हो गया. दिस इज हाई बीटा कंपनी. फाइन. Fine. The companies which have a higher beta, that means they will be going up more than the Sensex. If the Sensex goes by 10%, those companies, their share price will jump by 20%, and vice versa. In bad times, if the share market drops down by 10%, they will drop down by 20%. So they have high beta. अगर मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ, अगर सपोज Sensex goes up by 10% and your share of the company goes up by 15%. और अदर वे राउंड, व्हाट शुड बी द बीटा? 1.5, है ना. तो सेंसेक्स जो है वो बेस लाइन है, उसका बीटा 1 होता है. फाइन. अच्छा, अगर मैं कहता हूं एक कंपनी है, शेयर सेंसेक्स गोज अप बाय 10% एंड शेयर प्राइस ऑफ अ कंपनी गोज अप बाय 5% इन ईदर डायरेक्शन, 0.5. सो उसका बीटा कितना है? 0.5. इट इज लेस सेंसिटिव टू द बीटा, टू द सेंसेक्स.
ओके, सेंसेक्स जो है वो जितना बढ़ता उतना ज़्यादा या गिरता वो नहीं है। तो ऐसी कंपनीज जो होती हैं वो होती है लाइक कंज्यूमर कंपनीज, कंज्यूमर स्टेपल्स, कंज्यूमर स्टेपल्स, लाइक कंपनीज लाइक हिंदुस्तान यूनिलीवर क्या बनाती है? कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बनाती है। ओके, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स है। वो कंपनीज जो हैं लोग क्योंकि उसका प्रोडक्ट खरीदेंगे, चाहे इकोनॉमिक सिचुएशन अच्छी हो या बुरी हो, लोग कंघी भी लेंगे, शैम्पू भी लेंगे, खाने का सामान भी लेंगे, जो भी बनाते हैं हिंदुस्तान लीवर या डाबर है। ओके, ऐसी कंपनीज, दे आर नेस्ले है, सो दोज कंपनीज विल हैव लोअर बीटा, दे आर लेस रिस्कियर कंपेयर टू द मार्केट। और मारुति, डीएलएफ, they are having high beta. So type of business is basically depending upon whether you are making a discretionary product or whether you are making a consumer product. Okay, if you are making a consumer product, so those will have command a lower beta, and you are making a discretionary product, those companies will have higher beta. Is that okay? Fine. तो बीटा जो डिपेंड होता है वो टाइप ऑफ बिजनेस है और उसके बाद लेवरेज है। अगर आपने ज्यादा लोन ले लिया तो बीटा बढ़ जाएगा कंपनी का। Those companies which are running on high debt, their beta also goes up. फाइन। तो अगर आप कंपनी में अपना बीटा, अपना रिस्क कम करना है तो या तो लोन को पे कर दो, लोन खत्म कर दो। अगर कंपनी डिस्क्रिशनरी या लोन कम लेती है और एक कंपनी डिस्क्रिशनरी भी या लोन लेती है, इसका बीटा ज़्यादा होगा, रिस्क विल बी मोर। ओके फाइन। पर इसका नेट क्या है? अगर इकोनॉमी अब अच्छी चलने वाली है, इन्वेस्ट इन हाई बीटा कंपनीज because they are going to outperform rest of the other companies. If the economy is going to be under recession in the coming years and economy is not going to do well, if there is a forecast that the economy is not going to do well in the next 3 years, then sell high beta companies and buy low beta companies because they are going to protect your money and those companies will give you higher return in bad times. Is that okay? तो इसमें एक होता है कि आपने किस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, लो बीटा और हाई बीटा। High beta during good times. Companies like Maruti, DLF, they'll show a hotel industry, airlines, they will show negative, their profits will double, triple. अब बताओ फार्मा कंपनी का बीटा 1 होगा या 1 से ऊपर होगा? 1 से ऊपर। मुझे बताओ कि दवाइयाँ लोग खाते हैं, हमेशा ही खाएंगे, चाहे इकोनॉमी की सिचुएशन जो भी हो, तो लो बीटा होगा, हाई बीटा होगा? लो बीटा होगा ना। हिंदुस्तान लीवर का बीटा लो है, उसका बीटा भी लो होगा। अगर होटल इंडस्ट्री का बीटा क्या होगा? हाई होगा, लो होगा? हाई होगा। एयरलाइंस का बीटा क्या होगा? हाई होगा, लो? हाई होगा। जो चीज़ें रेस्टोरेंट जो है, नॉर्मल रेस्टोरेंट खाने पीने वाले, उसका बीटा क्या होगा? लो होगा और हाई होगा? लो ही होगा, लोग खाएंगे ही। अब जाके तो किसी ने लोगों ने कहा, हाँ 5 स्टार होटल का रेस्टोरेंट की बात नहीं कर रहा मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट normal restaurant business where people go and eat, so those people will always find that fill up. अच्छा like जो कंपनी लिकर कंपनीज होती हैं, इनका बीटा क्या होगा? हाई होगा, लो होगा? हाई होगा। लेकिन आप कह सकते हो यार बुरे टाइम में भी तो लोग पीते हैं नहीं, हाई होता है। लिकर कंपनीज का बीटा हमेशा हाई होता है बिकॉज इन गुड टाइम्स पीपल थ्रो पार्टीज, पीपल टेक वाइन, विस्की, सब पी रहे हैं, अच्छा तो उनका बीटा हाई है, सो दे जनरेट गुड। ओके फाइन। ओके नाउ ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। हाँ मिटा दो। अब डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज। ओके बैठ जाए। Okay, so now we have to calculate degree of financial leverage. So sales 8 lakhs, same thing. यहाँ पर हमने earning before tax निकाल लिया 3,10,000, इसके आगे चले गए. So now we need operating income, EBIT, which is this and this. EBT and EBT का देखना है relation. So degree of financial leverage is 1.13. Okay, because degree change in net income upon change in EBIT or EBIT upon EBT. So we have taken EBIT upon EBT to calculate the degree of financial leverage. बस ये कि आपको निकालना है। इस क्वेश्चन से आपको इतने 5 पैसे का क्वेश्चन है सिर्फ और 8 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है? ओके नहीं अलग है, उनका पेपर मैंने सेट कर दिया, आपका पेपर सेट कर दिया, बट आई एम नॉट मेकिंग, आपका कोड अलग अलग सेम है, code of the paper is same, okay, but the paper has to be different, okay, because they have doing is, अब आपका तो हमने 1 हफ्ते की पढ़ाने के बाद थोड़ा कर सकता हूँ मैं, सेम चीज़ पे तो आ नहीं सकते हम। ओके ये पढ़िए।
फिक्स्ड एंड वेरिएबल, ओके, फिक्स्ड एंड वेरिएबल है आंसर, ठीक है, इसका आंसर नहीं दिया, आगे। हाँ, लो ऑपरेटिंग लेवरेज, डेट, डेट, हाँ तो वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नीचे लिखा ही हुआ है। हाई ऑपरेटिंग लेवरेज रिलेटेड टू द यूज ऑफ एडिशनल फिक्स कॉस्ट, ओके, हाँ वेरिएबल कॉस्ट, नहीं प्रोडक्ट लेबर तो फिक्स कॉस्ट नहीं हो सकती ना, प्रोडक्ट लेबर तो बढ़ जाएगी, जितना ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ेगा उतनी लेबर बढ़ती जाएगी, रॉ मटेरियल भी बढ़ेगी, फ्यूल भी बढ़ेगा, सो ओनली थिंग इज डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन सेम रहेगी, आपने 15% डेप्रिसिएशन करते हैं तो वो एक ही रहेगी ना। आपने अगर 1 करोड़ के एसेट लगा दिए और आपको कोई जरूरत नहीं आगे बढ़ाने की कई सालों तक, तो डेप्रिसिएशन इज गोइंग टू रिमेन द फिक्स्ड। हाँ टोटल लेवरेज ही होगा, बिजनेस रिस्क जो है ऑपरेटिंग एंड, ओके ठीक है, वैसे कई लोग उसको बोलेंगे ऑपरेटिंग रिस्क लेवरेज जो है दैट इज द बिजनेस रिस्क, ओके, बट एनीवे वी नॉट टेकिंग, ओके, तो हम इसको भी कर देते हैं, अब छोड़ देते हैं इसको। आगे वाला क्वेश्चन आपको शायद ना भी समझ में आए, इज दिस ओके, हैव यू फॉलोड दिस, ये समझ में आ गया आपको अच्छी तरह? ओके, तो अब मैं 1 सेकेंड पहले तो इसको बंद कर दूं, यहाँ से रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ।